Hi everyone, I'm Dr. Shweta and I once again welcome you to Teaching Learning with Shweta. Today I'm going to start with a new topic, that is intelligence. And just like my previous videos on motivation or the learning theories that I had undertaken, this is also going to be in parts. So I'm going to create a series of video lectures clubbed together under intelligence, and this is the first part. So why I'm saying this, because you need to, if you're following my videos, you need to follow the sequence, and only then learning would happen in a perfect manner. So the sequence is very important. So let's start with our discussion on intelligence. It's a very important topic for the education students, all those students doing a B.Ed or M.Ed or even the coursework of PhD, their PhDs. This is a topic which is generally always included, and also in UGC, NET and all competitive exams like CETET. Questions from this concept are very common. So from an educational point of view, understanding intelligence is very important, because a lot of our curriculum, a lot of our teaching methods, a lot of our teacher transactional processes, they include intelligence as a very important construct. So it has to be addressed while studying in education programs. And not just in education, it's also a concept which is in general very important for us to understand as professionals, as parents, as human beings, because it's a very important quality in an aspect of human life. So let's study, let's know what we mean by intelligence. तो इंटेलिजेंस जो है उसका जो हम मतलब यूजुअल अपनी नॉर्मल लाइफ में निकालते हैं, वो हम बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि हम पढ़ाई से एसोसिएट करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो इंटेलिजेंस को यूजुअली हमारी एकेडमिक अचीवमेंट से एसोसिएट किया जाता है, कॉलेज में भी एकेडमिक अचीवमेंट से एसोसिएट किया जाता है। जितने ज़्यादा नंबर आए हैं, जितने अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर कोई टॉपर है, अगर कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहा है पढ़ाई में, तो वो इंटेलिजेंट है। तो हम ये बहुत कॉमनली ऐसा कहते हैं। And what I mean to say here is that when we are in school and college or in educational institutions, when we are acquiring education, then most of the people associate education with academic achievement and marks and performance and things like that. Although later on, when we'll study more about intelligence, more theories that we'll undertake under our discussion, we'll get to know that intelligence is not just academic achievement or related to academic performance. Of course, academic achievement is an important part, but not just that. तो वो हम पढ़ेंगे, हम आगे जाके ये देखेंगे कि ये खाली मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस, कितने नंबर आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज आ रही है, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए, यही इंटेलिजेंस नहीं है। ये आता है इंटेलिजेंस के अंडर, बट ये नहीं है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट अभी जो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा यूजुअल जो हम ये वर्ड्स सुनते हैं अपनी लाइफ में, बचपन से लेके जब हम स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, तो वो मार्क्स से एसोसिएट किया जाता है। फिर जब हम नौकरी करना शुरू करते हैं, वी स्टार्ट वर्किंग, देन इंटेलिजेंस इज ऑल्सो आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, ऑल दोज योर डिग्रीज एंड योर अचीवमेंट्स, they also prove your intelligence, and the way you work at your workplace, the way you solve problems, that also is associated with intelligence. And apart from this performance, so academic achievement से जब हम college time में जाते हैं, तो performance से भी intelligence को associate किया जाता है कि हम कितनी जल्दी काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने तरह के काम कर रहे हैं. So all these factors like performance, the rapidity with which we can, or how quickly we can do our tasks, how many tasks we can handle together, how we perform, how fast and how better and efficiently we perform, these all factors also replace academic achievements as we start growing up into adults and we start working. Also, a lot of people associate intelligence with problem solving. कोई life में problem आई है, तो उसको कैसे हम solve करेंगे? You encounter any problem in your life, can be a social problem, can be an emotional problem, educational problem, professional problem, or of any kind. So how one deals with those problems, how one solves these problems, we start associating that also with intelligence. We often say कि वो बहुत intelligent है क्योंकि देखो कितनी जल्दी अपनी problem से बाहर निकल आया. So intelligence के बहुत तरह तरह के perceptions हैं. There are so many understanding and perceptions about intelligence.
So keeping that into mind, we'll be studying about intelligence today. I will begin with definitions. तो मैंने बहुत सारी definitions ली हैं, and as I had discussed earlier that what I used to do as a student, I used to write down all definitions and underline the keywords, the important words, and then write them separately, and this is how I used to get an understanding of the concept. तो मैंने यही किया है, मैंने बहुत सारी definitions ली हैं और ये सारी नहीं हैं, ये कुछ ही ली हैं यहाँ पे अपनी स्लाइड में, और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन किया है ताकि हम उनका कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर पाएँ. तो यहाँ पे एक इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है स्टर्न ने. अब इनको आप ध्यान से इन डेफिनेशंस को देखिए और आप देखिए हर एक डेफिनेशन से कुछ नया मीनिंग निकल के आता है इंटेलिजेंस का. सो स्टर्न सेज इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी. सो ये कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियसली, जो जानबूझ के कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, गलती से एक्सीडेंटली नहीं कर रहा है, टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड इज द अडेप्टेबिलिटी टू न्यू प्रॉब्लम्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइफ. तो ह्यूमन बीइंग्स इंटेलिजेंट इसीलिए माने जाते हैं बिकॉज वो कोई भी नई सिचुएशन आती है या कोई भी सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में एकदम से चेंज आता है तो अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं. ह्यूमन बीइंग्स are capable of adjusting according to the changes in their lives. They can be negative changes, they can be unfavorable changes or favorable changes, and they can adapt. So adaptability is a sign of intelligence. जो जितनी जल्दी adapt कर जाता है मुश्किल situations में या changing situations में, ऐसा स्टर्न कहते हैं कि वो ज़्यादा intelligent है. So a person who adapts very quickly to the changing situations or environment and not just फिजिकली एडजस्ट्स बट अपनी थिंकिंग को भी चेंज करता है. अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है और हमने अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखा और उस सिचुएशन से हम एडजस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम में इंटेलिजेंस है. तो ये एक चीज़ जो उन्होंने डाली है स्टर्न ने इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में, दैट इज एडजस्टमेंट टू प्रॉब्लम्स. टर्मन सेज इट इज द एबिलिटी टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. मतलब अब एक नई चीज़ इन्होंने जोड़ी है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब डिफिकल्ट टाइप की लर्निंग. जैसे मैंने पहले जब पियाजे डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो, उनकी थिंकिंग बहुत कॉन्क्रीट होती है, बहुत सिंपल होती है कि अगर मैं उनको दिखाऊं कुछ तो ही वो उसको समझ पाएंगे. जैसे कि मैंने उनको ये ऑब्जेक्ट दिखाया, उसके बारे में बताया, तो ये उनके सामने है तो इसीलिए वो इसको समझ पाएंगे. लेकिन मैं उनको अगर इमेजिन करवाऊं और इमेजिन करा कि सब्सट्रैक्शन एडिशन इमेजिनेशन पर ही कराऊं, कुछ डिफिकल्ट ऐसा सोचने को मजबूर करूं, तो वो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. सो ऑल दोज सिंपल थॉट प्रोसेसेस कम अंडर कॉन्क्रीट थिंकिंग, and difficult thought processes, all those thinking abilities that are difficult like imagination, manipulation, they come under abstract thinking. तो ये जो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं इमेजिनेशन, मैनिपुलेशन, कैलकुलेशंस और हाई लेवल की थिंकिंग कर पाते हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट है, those people are said to be more intelligent. So abstract thinking is another aspect that decides whether an individual is intelligent or not. The other definition given by Wordsworth and Marquis, he says that intelligence is intellect put to use. अब यहाँ पे intellect word भी आ गया. किस तरह से, now handling a situation or accomplishing a task. So किस सिचुएशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ सकती है हमारी लाइफ में, और कैसे हम अपने कामों को पूरा करते हैं. तो बचपन में भी हम ऐसे कहते हैं कि जो बच्चे क्लास में उनको कोई काम दिया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी दी और तुरंत उन्होंने कर दिया, किसी ने बहुत टाइम लगाया, तो हम जनरली कहेंगे कि इंटेलिजेंस लेवल उस बच्चे का ज़्यादा है जिसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कोई टास्क कर दिया, कुछ क्रिएट कर दिया या एक सिचुएशन को हैंडल कर दिया. अगर हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए तो हमने उसको कैसे टैकल किया, अच्छे से टैकल कर दिया, स्मूथली टैकल किया, दैट ऑल्सो is an indication of intelligence. So how we handle our situations, how we solve our problems, or how we do any task, that is intelligence. Intelligence is required to do tasks. Jean Piaget, he says it is the ability to adapt to a surrounding. ये भी पहली हमारी स्टर्न की डेफिनेशन की तरह है, adaptation. Next, Wechsler has given a very nice definition. I personally like this definition a lot. एंड बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है, पूरा सम कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ में.
इंटेलिजेंस सिर्फ एक छोटी सी चीज नहीं है. अकॉर्डिंग टू वेशलर, इट्स जस्ट नॉट वन स्मॉल एंटिटी. इट्स एन aggregate or it's a sum total or global capacity of an individual to act purposefully, think rationally and deal effectively with his environment. So it's a wonderful definition. He says, ये कह रहे हैं कि हम purposefully act कर रहे हैं. मतलब जो इंसान सोच समझ के काम कर रहा है किसी रीजन से और रैशनली सोच रहा है, मतलब उसकी थिंकिंग बायस्ड नहीं है कि मम्मी ने ऐसा बोल दिया कि ये इंसान बुरा है तो मैंने यही मान लिया कि वो बुरा है. लेकिन जो रैशनल इंसान होगा वो खुद का दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि वो इंसान सच में बुरा है कि सिर्फ मेरी मम्मी ने कहा है इसलिए मुझे वो बुरा लग रहा है. So that person is rational who does not base his decisions of life on somebody else's opinion, who thinks rationally, who thinks neutrally, in an unbiased way. That person is an intelligent person who thinks purposefully. वो हमेशा हर काम किसी लॉजिक के साथ करता है, किसी रीजन के साथ करता है या करती है, एंड अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील करता है. एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, ऑफिस हो सकता है. क्लास में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो क्लास में अच्छे से बैठ रहा है, या ऑफिस में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है, मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स, टू थिंक पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड to adjust to the environment and remain good and well adjusted in the environment, these are also signs of intelligence, according to Wechsler. Then Stoddard's definition. This definition is also very beautiful and I find it very complete. He says, ability to undertake activities that are difficult, complex and abstract. तो वो एक्टिविटीज जो थोड़ी सी डिफिकल्ट है. सो अ पर्सन हु डज मोर डिफिकल्ट टास्क्स is considered to be more intelligent than a person who does simple tasks. So मैंने जैसे कहा था कि थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट होती है. एक इंटेलिजेंट इंसान एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, बट एक लेस इंटेलिजेंट इंसान बहुत ही सिंपल थिंकिंग करता है. सो ऑल दोज पीपल हु कैन डू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड नॉट जस्ट थिंकिंग, दे कैन डू डिफिकल्ट थिंग्स, आर मोर इंटेलिजेंट. Then he has also talked about adaptation, adaptive to goal. और एक और चीज उन्होंने जो ऐड की है, are done quickly, जल्दी काम कर सकता है इंटेलिजेंट इंसान, and which have social value. मतलब जो इंसान ऐसे काम कर रहा है जो सोशली इम्पोर्टेंट है. अब उसने अपने घर में अगर कुछ मैथ्स का सम सॉल्व किया है तो उससे किसी का कोई फायदा नहीं है, बट उसने कुछ रिसर्च की है, उस मैथ्स के सम को यूज करके कुछ क्रिएट किया है, कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है रिसर्च में, या ही इज थिंकिंग ऑफ इन्वेंटिंग समथिंग, मेकिंग समथिंग, सो दैट विल हैव अ सोशल वैल्यू, उसकी कुछ दुनिया में यूज होगा. तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं. सो जो साइंटिस्ट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो कॉन्स्टेंटली कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए बना रहे हैं. इट हैज सोशल वैल्यू. So that is also intelligence. When you are doing something difficult, when you are adapting to environment, when you are creating something new which has not been done. अगर क्लास में आपने सारे बच्चों को कोई एक सवाल करने दिया है और एक बच्चा उसको अलग तरीके से करके लाता है, तो इसका मतलब उसमें इंटेलिजेंस है और डिफरेंट टाइप की इंटेलिजेंस है और ज्यादा है. Because an intelligent person will always come up with something new, something different and something that has importance. सो ये जितने भी रिसर्चर्स हैं, ये जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, समथिंग न्यू एंड समथिंग दैट हैज सोशल वैल्यू. अब एटम बॉम्ब क्रिएट कर दिया किसी को मारने के लिए, ऑफ कोर्स ये भी नई चीज है, ये भी कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें भी इंटेलिजेंस लग रही है, बट इसकी सोशल नुकसान ज्यादा है. तो we are not sure whether we are going to put it under intelligent activity or not, but of course it requires abstract thinking, it requires effort, तो intelligent हो भी सकता है. तो देखो हमने इतने सारे कीवर्ड्स इन डेफिनेशन से निकाले. सो वी हैव फाउंड आउट अ पर्सन हु इज इंटेलिजेंट कैन एडजस्ट एंड अडेप्ट टू प्रॉब्लम्स, टू एनवायरनमेंट, टू कंडीशंस ऑफ लाइफ. वो भागेगा नहीं कि एकदम से मान लो देयर इज अ फेमीन और देयर इज अ नेचुरल कैलामिटी, तो वो तरीके निकाल लेगा उसमें एडजस्ट करने के. अगर लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है तो वो भी उसको सॉल्व करने के लिए उसमें आराम से रहने के तरीके निकाल लेगा या निकाल लेगी. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हैंडल अ सिचुएशन, डू डिफरेंट टास्क्स, कंप्लीट करते हैं, अकम्प्लिशिंग अ टास्क. कोई काम उनको दिया जाएगा तो इंटेलिजेंट लोग उसको खत्म करते हैं, ये नहीं कि बीच में छोड़ के भागे. दे कैन अडेप्ट टू सराउंडिंग्स,
दे कैन टेक एक्टिविटीज, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, जल्दी चीज़ों को करते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं बनाते हैं जो सोसाइटी के लिए यूजफुल है, सोशल वैल्यू है और कुछ नया है और डिफरेंट है. सो दीज आर द थिंग्स दैट दीज डेफिनेशंस पॉइंट टूवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंट इंसान ये है अकॉर्डिंग टू दीज डेफिनेशंस. एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहा है, उसकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट है, रैशनल है. रैशनल का मतलब ऊट पटांग थिंकिंग नहीं है, वो बहुत लॉजिकली सोचता है और जल्दी काम करता है, कुछ नया बनाता है, डिफिकल्ट टास्क करने से डरता नहीं है. सो दैट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन. अब हम आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस. ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लासिफाई करने की कोशिश की है इंटेलिजेंस की थ्योरीज को. तो 3 टाइप की थ्योरीज हम पढ़ेंगे इन एंड हम एक बार में नहीं पढ़ेंगे. वी विल बी स्टडिंग ऑल दीज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन पार्ट्स. टुडे आई विल बी ओनली टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, द फैक्टर थ्योरीज, जिसके अंडर ये 4 थ्योरीज मैं पढ़ाऊंगी. एंड द रिमेनिंग थ्योरीज वी विल बी स्टडिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स. सो फैक्टर थ्योरीज के अंडर 4 है, मोनार्किक, एनार्किक, Spearman's two-factor theory and group factors theory. फिर है Vernon's hierarchical theory, and then we have several cognitive theories of intelligence. इसमें बहुत सारी famous theories हैं and we'll take up one by one. Let's finish these 4 theories of intelligence today. बहुत simple है, बहुत easy है, बहुत basic है. लेकिन ये सारी जो theories हैं ये बहुत ज़्यादा अब commonly use नहीं होती हैं, क्योंकि ये या तो किसी एक फैक्टर की बात कर रहे हैं या सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं. बहुत जनरलाइज्ड ओपिनियंस है इन थ्योरिस्ट्स के जिन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, या फिर उन्होंने कुछ ही चीज़ों को ग्रुप्स में डाल दिया है कि यही इंटेलिजेंस के पार्ट्स हैं. इंटेलिजेंस क्या है इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि या तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो हर चीज़ में यूज होता है, एक कॉमन चीज़ है. इंटेलिजेंस क्या है? एक कॉमन चीज़ है हमारे अंदर, और वही इंटेलिजेंस मैथ्स में भी यूज हो रही है, वही स्पोर्ट्स में भी यूज हो रही है, वही म्यूजिक में भी यूज हो रही है, वही हिंदी में भी यूज हो रही है. ऐसे कुछ लोगों ने कहा है. कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 फैक्टर्स हैं, ये इसमें यूज हो रहा है, ये इसमें यूज हो रहा है. कुछ लोगों ने कहा बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग कैटेगरी में डाल दिए हैं, वो इंटेलिजेंस से लिंक्ड है. तो इस तरह की बातें उन्होंने की हैं एंड ये थ्योरीज अभी बहुत ज़्यादा यूज में नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं. So let's understand what these theories are. Unifactor theory of इंटेलिजेंस, इसके जो सपोर्टर्स थे वो थे स्टर्न, टर्मन, बिनेट. ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली इंटेलिजेंस पे काम किया है एंड इन्होंने ये कहा था क्यों इनकी थ्योरीज को हम यूनिफैक्टर थ्योरी में रखते हैं, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है, एक फैक्टर है और वो एक फैक्टर हर चीज़ में यूज हो रहा है. सो व्हाट दी साइकोलॉजिस्ट्स से that can be put under the propounders of unifactor theory of intelligence. They say that intelligence is one complete entity. It is one complete unit. It is one everything that is being used in everything in life. All those activities that we do, like reasoning, memory, discriminating, imagining, जितने भी ये काम कर रहे हैं हम, all these activities require just one common something which is known as intelligence. So there are no divisions. There's just one ability, one common ability which is being used to do everything. तो एक इंटेलिजेंस एक ही चीज़ है जिससे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं. इन थ्योरीज को, और वो बहुत ट्रेनिंग के साथ और शार्प होती जाती है. तो बच्चा जैसे जैसे स्कूल में जाता है, जैसे जैसे वो कॉलेज में जाता है, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी ये एबिलिटीज़ जो हैं रीजनिंग करने की, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन करने की, वो सब शार्प होती जाती है. बट इन थ्योरीज को, ये जो वन फैक्टर थ्योरी है, इसको क्रिटिसाइज किया गया था. क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा देखा गया था कि ये तो ये कह रहे थे कि एक इंटेलिजेंस है, अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो सारे काम अच्छे से करेगा, वो रीजनिंग भी अच्छे से कर लेगा, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन सब अच्छे से कर लेगा. लेकिन ऐसा देखा गया कि अ पर्सन हु वाज इंटेलिजेंट इन मैथ्स was unable to be intelligent in other subject like Hindi or English or in sports. तो ऐसा कनेक्शन नहीं मिला. मतलब इस थ्योरी में ये कहा जा रहा था कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो वो सब चीज़ों में इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि एक ही फैक्टर है इंटेलिजेंस का. वो फैक्टर ज़्यादा है तो वो सब में इंटेलिजेंट है, वो फैक्टर कम है तो वो किसी भी चीज़ में इंटेलिजेंट नहीं है, किसी भी काम में अच्छा नहीं है. पर इट वॉज सीन दैट ये देखा गया कि कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे
जो कुछ कामों में बहुत इंटेलिजेंट थे और कुछ कामों में नहीं थे। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज, इसीलिए इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर थॉर्नडाइक ने कहा, ये थोड़ी सी इससे अपग्रेडेड थ्योरी थी। इन्होंने कहा कि एक फैक्टर नहीं होता, कॉमन या जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगर हमें मैथ्स पढ़ना है तो उसकी इंटेलिजेंस अलग है, हिंदी पढ़नी है तो उसकी इंटेलिजेंस अलग है, सोशल स्टडीज पढ़नी है तो उसकी इंटेलिजेंस अलग है, स्पोर्ट्स की इंटेलिजेंस अलग है, म्यूजिक की अलग है, हर चीज़ की अलग अलग है और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो अगर किसी की स्पोर्ट्स की ज़्यादा है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसी इंसान की अगर इंग्लिश में ज़्यादा इंटेलिजेंस है तो वो इंग्लिश में अच्छा है। सो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। So what multi-factor theory given by Thorndike says that intelligence is not one factor. There are many factors and each factor decides performance in that particular area. For example, there will be one intelligent factor for maths. So if a person has high intelligence in maths, he or she will be able to do good in maths. That person will not be able to do good in other subjects. For that, separate intelligence is needed. So there are several factors. Here I've just drawn 5 factors. So there are many factors of intelligence and they are not relating to each other. So the amount of intelligence, if the amount of intelligence is high in one factor, in some factors, the person will be good at those factors, and they are separate. There is no relationship. So if a person is good at maths, the maths intelligence is high, that factor is high, then that person will only do maths well. So that maths factor is not going to impact English factor. English के लिए, for English, separate intelligence in English is required. So that is how he distinguished or identified various factors responsible for different intelligences. But this theory was also criticized क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर फैक्टर एक के लिए, किसी एक काम करने के लिए, सपोज म्यूजिक की इंटेलिजेंस अगर हाई है तो वो सिर्फ म्यूजिक कर सकता है, वो मैथ्स नहीं कर पाएगा क्योंकि मैथ्स की लो है, सपोज एग्जाम्पल। बट ऐसा देखा गया कि म्यूजिक और मैथ्स में भी कोरिलेशंस आ रहे थे। एक बंदा, एक इंसान जो एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट था या एक टॉपिक में इंटेलिजेंट था, एक फैक्टर में इंटेलिजेंट था, वो 2-3 और फैक्टर्स में भी इंटेलिजेंट था। मतलब कुछ रिलेशनशिप था आपस में, कुछ इनके बीच में कोरिलेशन था, ये अलग अलग सेपरेट नहीं थे। सो दिस वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी। दिस थ्योरी, थॉर्नडाइक ने कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए थे कि किसको ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। सपोज इन्होंने पहले तो ये कहा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, एक कॉमन इंटेलिजेंस नहीं है जो सब चीज़ों में यूज़ होती है, हर अलग अलग चीज़ में अलग अलग इंटेलिजेंस यूज़ होती है। अब इंटेलिजेंस को डिसाइड करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं। सो थॉर्नडाइक सेड दैट देयर आर 4 थिंग्स दैट डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल विल बी इंटेलिजेंट और नॉट। दे आर लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड. So a person who can do level, what do we mean by level? A person who can do very difficult tasks at higher level, that person is more intelligent. A person who, then comes range, a person who can do a lot of different things, like from variety of things. That is, for example, I can do a maths activity and I can also do calculus activity. I can also do something related to problem solving. So range बहुत बड़ी है. I can also sing a song. I can also play a sport, or I can also do debates. So the range or the variety or the types of activities are very different and are very broad. सो उसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत लंबे रेंज में लाई कर रही हैं। दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, मल्टीटास्क कर सकता है, वो मल्टीपल चीज़ें कर सकता है। एरिया मतलब एक साथ कितनी चीज़ों को कर सकता है, दैट ऑल्सो इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। एंड स्पीड, कितने फास्ट किसी चीज़ को कर सकते हैं, that also decides intelligence. Some people do things very quickly and some people take a lot of time in simple activities. So intelligence is higher in the former case. तो मल्टी फैक्टर थ्योरी अगर हम फिर से रिवाइज करें तो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के लिए डिफरेंट चीज़ों में जो इंटेलिजेंस चाहिए वो अलग अलग तरह की है और उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। एक सब्जेक्ट में जो इंटेलिजेंस चाहिए उस इंटेलिजेंस से वो दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता। लेकिन ऐसा देखा गया कि अ पर्सन हु वाज गुड एट मैथ्स, that person whose intelligence was higher in maths factor was also very
गुड इन क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये दोनों का ये थ्योरी तो कह रही है कि दोनों इंटेलिजेंस अलग अलग हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए वो बिल्कुल अलग है और मैथ्स के लिए बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन पाया गया। समबडी जिसका मैथ स्ट्रांग था, देखा गया कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी अच्छी थी। ये जिस एग्जाम्पल है एक। सो दिस मीन्स दैट दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉट 100% ट्रू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी दी थी हमारी थर्स्टन ने, जिसको हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया एंड उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख दिया। सो व्हाट ही डिड वाज ही आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ मेंटल एबिलिटीज। मेंटल एबिलिटीज जब भी हम कहते हैं तो वो इंटेलिजेंस से ही लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन इज अ मेंटल एबिलिटी, हम उसको कर सकते हैं, ये हमारी एबिलिटी है, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। सो व्हेनेवर आई एम यूजिंग द वर्ड मेंटल एबिलिटी, आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग टू इंटेलिजेंस। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थर्स्टन ने दी थी, और उन्होंने ये कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि इंडिविजुअल इंटेलिजेंट है कि नहीं, उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं। और वो ग्रुप्स थे ये वाले: न्यूमेरिकल, वर्बल, स्पेशल, मेमोरी। वर्बल फ्लुएंसी की जगह वर्ड फ्लुएंसी भी यूज होता है। इंडक्टिव रीजनिंग एंड परसेप्चुअल स्पीड। तो मतलब हम जितनी भी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करते हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब इंटेलिजेंस में माना जाता है अकॉर्डिंग टू थर्स्टन। एंड जितनी भी टाइप के न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं, छोटे बड़े, ये सब न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ग्रुप के अंडर आते हैं। सो ऑल दोज एबिलिटीज that require us to do addition, subtraction, or division, multiplication, or dealing with numbers, or dealing with quantities, all those abilities can be grouped under one category of intelligence, that is numerical intelligence. So if a person is high on numerical intelligence, अगर किसी की numerical intelligence high है, तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सब उसकी अच्छी होंगी। कैलकुलेशन एंड डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, मैनिपुलेशन, मेजरमेंट, क्वांटिफिकेशन, ये सब उसका अच्छा होगा। तो इन सब को हम इस ग्रुप के अंडर रख सकते हैं। सेकेंड वॉज वर्बल, जिसमें आती है हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग सिम्बल्स, ये सारी चीज़ें, all these things, if a person is high on them, that means that the person is high on verbal intelligence. All these abilities can be categorized and put under this group of verbal. That is what Thurston had done. He had identified so many mental abilities of intelligence and categorized them, put them into these broad categories. The spatial, you must have seen some people, they are very good at handling spaces. The architects, you can see, they handle their spaces very well. If you send them, अगर आप एक आर्किटेक्ट को रूम में भेजोगे तो उसको स्पेस का ही आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ रखने से अच्छा होगा। ऑल्सो दीज पीपल आर वेरी गुड एट ड्रॉइंग, वो कागज की स्पेस को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके वो कर सकते हैं। All those people who are pilots and who are navigating on sea and in marine submarines and all those people, they also manipulate space. वो भी जो आसमान की स्पेस है या पानी की स्पेस है, उसको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके उसकी समझ बहुत हाई होती है उनकी। तो ये वाले जो लोग हैं, ये सारी जो एबिलिटीज हैं, इसको हम रखते हैं स्पेशल मेंटल एबिलिटी के ग्रुप के अंडर। तो जिसकी स्पेशल एबिलिटी हाई होगी, उसका ये सारे काम करना अच्छा होगा, वो ये सारे कामों को बहुत अच्छे से कर सकता है। देन वर्ड फ्लुएंसी या वर्बल फ्लुएंसी, हम कितने फ्लुएंटली लैंग्वेज को बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा वर्बल से भी कनेक्टेड है, बट इसको अलग से उन्होंने रखा था। सो ऑल दोज पीपल दैट आर हाई एट वर्बल फ्लुएंसी, द मेंटल एबिलिटी ऑफ वर्बल फ्लुएंसी, they have good pronunciations, they are good speakers, they are good orators, they are good writers also. They fluently speak and have a good command on language. Then inductive reasoning. इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि जब हम स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं या हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर उससे हम जनरलाइज करते हैं। कि अगर हम एक स्कूल में गए, वहाँ पे हमने 50 बच्चों को देखा कि वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब हमने ये कंक्लूड किया कि स्कूल का मैथ्स पे फोकस बहुत अच्छा है। या हम किसी स्कूल में गए, वहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमने जनरलाइज कर लिया कि स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत जोर है। तो जब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और उनको स्टडी करके हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ये सारे ऐसे हैं,
That is inductive reasoning. सो दैट एबिलिटी इज ऑल्सो इंटेलिजेंस. तो हम कहीं गए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा और उन एग्जाम्पल से हमने कुछ कंक्लूड किया. ये सारे लोग नहीं कर पाते हैं और सारे लोग अच्छे से नहीं कर पाते. तो ये वाली जो एबिलिटीज हैं ये आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के ग्रुप में, जब हम एग्जाम्पल्स से कुछ कंक्लूड करते हैं जनरली. देन परसेप्चुअल स्पीड. परसेप्शन मतलब अंडरस्टैंडिंग, जो भी बाहर से चीजें आ रही हैं उनको वो स्टिमुलाई हैं और उनको समझना. कुछ लोग तुरंत समझते हैं, उनकी स्पीड बहुत हाई होती है और तुरंत एक्शन लेते हैं. कुछ लोगों को चीज़ें बहुत देर में समझ में आती हैं. तो ये वाली जो फैक्टर है, ये जो मेंटल एबिलिटी है, ये है परसेप्चुअल स्पीड की. तो थर्स्टन ने कहा था कि ये अलग अलग ग्रुप्स है. थर्स्टन डिवाइडेड इन मेंटल एबिलिटीज. ही फर्स्ट आइडेंटिफाइड अ नंबर ऑफ मेंटल एबिलिटीज and then he made groups, and under these groups there were same kind of mental abilities. So there were certain mental abilities under numerical mental ability, group of numerical. There were certain mental abilities under verbal. So this is how he categorized into all the mental abilities into these groups. He put them under these groups. So this theory is called group factor theory. It is of course a better theory because he has identified a lot of mental abilities. But a drawback of this theory is that most of the mental abilities that he has identified are cognitive abilities. तो ये इस theory की थोड़ी सी drawback है. इन्होंने करा तो है बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज को आइडेंटिफाई, लेकिन इन्होंने ज्यादा फोकस दिमाग की चीजों को ही रखा है. इन्होंने म्यूजिक को नहीं अकाउंट में लिया है, स्पोर्ट्स को, कनेस्थेटिक को नहीं अकाउंट में लिया है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इन चीजों को, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन चीजों को थोड़ा सा ये थ्योरीज, particularly this theory, ignores. But it is still a very good theory because it keeps into account, it considers, it identifies and talks about a lot of mental abilities that were not discussed earlier. फिर एक बहुत फेमस थ्योरी आती है एंड दैट इज स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी. अभी हम सिर्फ फैक्टर ही कर रहे हैं क्योंकि आज हमारा डिस्कशन ही फैक्टर थ्योरीज पर है. सो अब जब आगे हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ेंगे तो उनमें ये फैक्टर्स बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं आएंगे. सो लेट्स सी व्हाट स्पीयरमैन सेज. स्पीयरमैन कहते हैं सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं इंटेलिजेंस के. वो ये कहते हैं कि एक तो इंसान की एक जनरल एबिलिटी होती है. एवरी पर्सन हैज जनरल इंटेलिजेंस. सो दैट जनरल इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, इट्स कांस्टेंट एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की एक जनरल इंटेलिजेंस होती है. मेरी कुछ जनरल इंटेलिजेंस होगी, आपकी कुछ अलग जनरल इंटेलिजेंस होगी, बट ये सब में होगी. और वो जनरल इंटेलिजेंस हर चीज में यूज होती है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पढ़ना हो, सब में जनरल इंटेलिजेंस चाहिए. किसी की ज्यादा है वो जनरल इंटेलिजेंस, किसी की कम है. लेकिन अगर मुझे खाना बनाना है और तो जनरल इंटेलिजेंस तो मेरी खाना बनाने में यूज हो ही रही है, लेकिन खाना बनाने की एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होगी जो सिर्फ खाना बनाने में यूज होती है. आप अगर ड्राइविंग अच्छी करते हो तो इसका मतलब आपकी जनरल इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन साथ में ड्राइविंग के लिए एक अलग से एक इंटेलिजेंस है जो आप में ज्यादा है, मेरे में नहीं है. अगर आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो तो इसका मतलब जनरल इंटेलिजेंस तो आपकी कुछ है ही, बट एट द सेम टाइम आप एकेडमिक्स के लिए आपकी एक अलग से इंटेलिजेंस है जो आपकी ज्यादा है, हो सकता है मेरी ना. सो एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है और जितने तरह के काम हैं उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है. सो दिस जनरल इंटेलिजेंस इज जी. जितना ज्यादा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया था कि जितना ज्यादा दिमाग बड़ा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जितना बड़ा है उतना जी ज्यादा है, जनरल इंटेलिजेंस ज्यादा है, और ये हर काम में यूज होती है. तो हम जितने भी काम करते हैं उसमें थोड़ी सी जनरल इंटेलिजेंस तो यूज होती ही है. सारे लोग जितने काम करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यूज करते ही हैं, लेकिन कौन सा काम कर रहे हैं उस काम पे डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कौन सी यूज हो रही है. ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज होगी, म्यूजिक के लिए म्यूजिक की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज होगी, क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्रिएटिव राइटिंग की इंटेलिजेंस यूज होगी. तो हमारे पास ढेर सारी स्पेसिफिक इंटेलिजेंसेस भी हैं और एक कॉमन जनरल इंटेलिजेंस भी है. तो अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी यूजेस जनरल इंटेलिजेंस जो कि हमें कॉमन कांस्टेंट है, और हिंदी के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यूज हो रही है जो एक फैक्टर है एस एच, मैंने यहाँ पे डिनोट किया है. तो अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, if somebody is good at sports, that person is using general intelligence that is constant and fixed in that person, and apart from that
some specific intelligence of sports is also being used by that person. So a person who's good at Hindi does not have this sports intelligence. He or she has general intelligence but has SH and not SS. So a person who's good at sports has SS, specific intelligence of sports, but not specific intelligence of Hindi. If a person is good at both, अगर कोई इंसान हिंदी और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा है तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, G प्लस SS प्लस SH, मतलब उसमें SS भी है और SH भी है. सो दैट इज हाउ स्पीयरमैन डिस्कसेस इंटेलिजेंस कि हर काम के लिए एक जनरल इंटेलिजेंस तो चाहिए ही, बट उस काम के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए. तो वो काम अगर म्यूजिक है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, अगर वो काम स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस, अगर वो कुकिंग है तो कुकिंग की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस. जनरल इंटेलिजेंस दैट इज नीडेड इन एवरीथिंग. कुकिंग में हमें जनरल इंटेलिजेंस भी चाहिए और कुकिंग की स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी चाहिए. अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ रही है वो है वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी. अब ये वर्ड जब हायरार्किकल आ गया, अभी तक हमने फैक्टर्स पढ़े थे, इतने सारे फैक्टर्स हैं, कोई कह रहा है कि एक ही फैक्टर है, कोई कह रहा है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई कह रहा है दो ही फैक्टर्स हैं, कोई कह रहा है फैक्टर्स को ग्रुप में डाल दिया. तो अब वर्नन क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी सिमिलर है फैक्टर थ्योरी से, हालांकि फैक्टर थ्योरी में नहीं आती है. ऑल्दो दिस थ्योरी डज नॉट fall under the factor theories, but I will be discussing it today only because indirectly it also talks about some factors. So although he is given a hierarchy, but still these are factors only. So I will be discussing them today as well, this theory as well, but it is not categorized or put under the factor theories. It is studied separately. So Werner, Philip E. Werner gave this theory in 1964 and this person has worked extensively on intelligence. and इन्होंने अगर आपको याद हो, मैंने जो नेचर वर्सेस नर्चर वाला जो वीडियो लेक्चर पोस्ट किया था उसमें मैंने बहुत सारी बातें की थी अबाउट जीन्स एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेइंग अ रोल इन पर्सन्स इंटेलिजेंस. ये वाला जो एरिया, जो टॉपिक था कि हेरिडिटी से इंटेलिजेंस आ रही है या एनवायरनमेंट से इंटेलिजेंस आ रही है, ये वर्नर ने काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडी किया था. एंड उन्होंने ये कंक्लूड भी किया था कि हमारे जो जीन्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, हेरिडिटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस के लिए दैन एनवायरनमेंट. सो ऑल दैट वी हैड डिस्कस. सो वर्नर हैड एक्सटेंसिवली वर्कड ऑन दीज एरियाज एंड हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. उनकी थ्योरी जो इंटेलिजेंस की है वो भी बहुत फेमस हुई थी. तो वो ये कह रहे हैं कि एक हायरार्की है ऊपर से नीचे तक. जैसे थर्स्टन ने कहा था कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वैसा नहीं है. ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की है. कुछ बहुत ऊपर इन्होंने भी हमारे जो स्पीयरमैन की तरह जनरल इंटेलिजेंस की बात की है कि टॉप में जनरल इंटेलिजेंस है, वो सब के लिए, सब कामों के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर हम जब नीचे आते हैं तो दो टाइप की इंटेलिजेंस होती है, एक तो वेद और KM. वेद जो है वो न्यूमेरिकल, वर्बल, एजुकेशनल चीज़ों के लिए होती है, जो हम बोल के चीज़ें कर रहे हैं, स्पीकिंग. ये स्कूल में जनरली फोकस होता है. पढ़ाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस, क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, ये वाली इंटेलिजेंस है. और बोलने वाली इंटेलिजेंस है, ये सबको हमने, और पढ़ाई लिखाई की जो इसको हमने वेद के अंदर डाला है. और KM प्रैक्टिकल. तो इन्होंने पहली बार प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की. अब तक जो सारे आ रहे थे वो मोस्टली till now all the theories were discussing either of the general intelligence or factors, but those factors were largely cognitive. For the first time, Werner has spoken about practical intelligence. So all those intelligences like numerical, verbal, educational, he puts it under Ved, and he also develops a new factor, that is KM, in which he talks about practical intelligence, ability to solve problems, and those problems are not maths problems. अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हमें बुली कर रहा है, कोई हमारे घर में चोरी कर रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें, दैट इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. कहीं पे कुछ स्विच खराब हो गया है, कुछ हमारी पेंसिल छीलनी है, टूट गई है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स. some physical problems related to our body, health, some space related problem, हमें रूम को कैसे अरेंज करना है, कैसे सजाना है. so all these are practical aspects. ये वाले इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की और उसको एक दूसरे कैटेगरी में रखा. तो ये भी फैक्टर थ्योरी जैसी ही है, डिफरेंट फैक्टर्स को उन्होंने बस उन्होंने हायरार्की में रखा है इसको.
Instead of putting it under groups, he has placed them under hierarchies. But इन्होंने भी factors identify किए हैं और factors को group में रखा है. So this is what the structure that Vernon gives. That top पे general ability है. तो Spearman की तरह ये भी कह रहे हैं, like Spearman, he is also saying that there is general intelligence at the top. And दो तरह की main intelligence होती हैं, practical और verbal educational. Verbal educational includes all that we study in the school. So a person who is good at verbal educational intelligence will be good at handling numericals or calculations, quantification, measurements, and will be good at verbal actions or operations like speaking, writing, and handling language and things like that. And the second kind of intelligence that he talks, it comes under practical, in which practical problems, the ability to solve the practical problems or to develop things or to handle situations, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई. तो टॉप पे जनरल है, फिर थोड़ा सा कम ब्रॉड है वर्बल और प्रैक्टिकल, उसके बाद बहुत सारी छोटी 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 चीजें आती हैं. अब वर्बल जैसे एक बड़ा एस्पेक्ट है, वर्बल के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बोलना, खड़े होकर स्पीच देना, डिबेट करना, लिखना. तो ये स्पेसिफिक एक एक अलग अलग वर्बल के अंदर आ रही है. तो इस तरह से हायरार्की बनी हुई है. ऊपर ब्रॉड है इंटेलिजेंस, फिर दो ब्रॉड कैटेगरीज आ गई, फिर उनके अंदर और छोटी छोटी चीजें आ गई. So at the top we have a broad general intelligence divided into narrower groups, divided into specific abilities. That is how a hierarchy of intelligence is formed according to Vernon. So today's video lecture was primarily about an introduction to intelligence. जो intelligence की बाद में theories आई हैं, very famous theories, and some still largely applicable in academics and at workplaces and in different areas, वो हम next video lecture में पढ़ेंगे. Today's theories were an introduction to research that started on intelligence. All these people, they started their researches on intelligence and paved way for some very great and more relatable, more applicable theories of intelligence that we'll be taking up in our further video lectures. So it's important to know these theories also, क्योंकि हर theory कुछ ना कुछ नया तो contribute कर ही रही है. So revising today's lecture, Terman, Stern, विनय, ये सिंगल फैक्टर थ्योरी दी थी कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो ही फैक्टर सब चीजों में यूज हो रहा है. वो फैक्टर ज्यादा है तो सब काम अच्छे से होंगे, वो फैक्टर कम है तो नहीं होंगे. सो ही इज सेइंग दैट देयर इज अ सिंगल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच इज डिसाइडिंग एबिलिटी इन एवरीथिंग. Then Thorndike is saying there are many factors and all those factors are not depending or affecting each other. And all these factors, if I have a factor of maths as high, I'll be high on maths. I'll be highly intelligent in maths, but not in sports because that factor may be less. So all these different factors, they differently affect intelligence of various kinds. Spearman has talked about general and specific intelligence. Thurston has talked about, he has put under various groups, and Werner has talked about hierarchy. So Spearman says that there is general intelligence which is used in everything, but all those different things require specific intelligence also. तो अगर हम एक एक्टिविटी में भी अच्छे हैं तो जनरल इंटेलिजेंस तो हमारी है ही, बट उस एक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस चाहिए होगी. अगर हम दो तीन एक्टिविटीज में अच्छे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, then my general intelligence is common for reading and writing, but I have a specific intelligence for reading and specific intelligence for writing. बाकी सारी specific मेरी low हो सकती है. So G plus HR plus H plus S W, ये मेरा total equation इस तरह से बनेगी. Thurston, what did he do? He identified various mental abilities and put them under various groups, verbal, numerical and word fluency, inductive, बस ये सारे उन्होंने factors लिए थे. एंड थर्स्टन ने ये किया था और वर्नर ने उसको हायरार्की में दे दिया कि ऊपर जी है कॉमन इंटेलिजेंस, फिर वो दो फैक्टर्स में डिवाइड होती है एंड ये दो फैक्टर्स अलग अलग छोटी छोटी एबिलिटीज को हैंडल करते हैं एक साथ. सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑन इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस थ्योरीज, एंड इन द फ्यूचर वीडियोज वी आर गोइंग टू टेक अप more theories of intelligence. So stay connected, follow the sequence,
and don't forget to subscribe my channel if you like these video lectures. That kind of motivates me. And if you want more videos, please, and if you like this video, please hit the like button. Thank you.